Okay, so in the last class, we discussed the number system and conversion between different number systems. In this class, we will discuss the next topic, which is complements of the numbers. Now, complements are used in digital computers to simplify the subtraction operation. We will discuss later today that how simple subtraction that we use in decimal systems cannot be used in digital computers, and they have to do something extra for the subtraction operation. And same way, for logical manipulation also we use complements of the number. Now there are two types of complement in each number system. Suppose we have a number system with base R, then there are two complement systems that we can have. The one is radix complement. So the number system जिसको हम R भी बोलते हैं, बेस R बोलते हैं, बेस को हम कई बार रेडिक्स भी बोलते हैं. So the first type is radix complement and it is denoted as R's complement. So suppose you have a binary system. So the base of value R or the radix value is 2. So we will say that the radix complement for the base for binary number system will be known as 2's complement. And another one is diminished radix complement. That is R minus 1's complement. So 2 minus 1, that becomes 1's complement. So in binary number system, there are two types of complements that n number can have, and these are 2's complement and 1's complement. 2's complement को हम बोलते हैं radix complement, 1's complement को बोलते हैं diminished radix complement. So and suppose if we have value of R10, that is decimal number system. So similar to binary, there will in here also there will be two complements. One will be 10's complement and another will be 9's complement. R minus 1, 9's complement. ठीक है. सो कोई भी हमारा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस वैल्यू R है, उसमें दो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, R's complement and R minus 1's complement. Okay, so let's discuss how to calculate these complements of the numbers for different numbers. फिर हम रेडिक्स वाले को 2s क्यों कहते हैं? 2's इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि उसमें R की वैल्यू 2 है बाइनरी के अंदर. R की जगह 2 रख दो तो 2's complement. अगर बेस 10 है तो 10's complement. Okay, so let's first calculate R minus 1's complement. ठीक है, तो हमें एक नंबर दिया जाएगा n in a particular base R and there are n digits for that particular number. ठीक है, so R minus 1 यहाँ पे apostrophe आएगा. R minus 1's complement of that number will be defined as this value, R to the power n minus 1 minus capital N. Let's take an example to solve this, to understand this in more better form. Let's say we are using decimal numbers, so the value of R is 10 and R minus 1 will be 9. Or we are now calculating the diminished complement, so we will calculate the 9's complement of the number n, and that will be given by this particular equation. R to the power n, so base हमारा 10 था, 10 to the power n minus 1, and then subtract the number from this particular value. This is our original number जो हमें कैलकुलेट करना था. इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10 raised to the power n minus 1, where n represents the number of digits in the number. ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 10 raised to the power n, 10 raised to the power n को हम क्या लिख सकते हैं? A single 1 followed by n zeros. और 10 raised to the power n minus 1 क्या होगा? A number represented by n nines.
लेट्स से 10 रेज टू पावर, अगर हमारी स्मॉल n की वैल्यू 2 है, तो दिस विल बिकम 100 minus 1 99, so there will be 2 9. n की वैल्यू 3 लोगे तो 1000 minus 1 999. So this particular term is having n number of 9s. Okay, and now we have to subtract the original number from this particular number. Just wait for a second. Okay, so let's say we have to compute the 9th complement of this particular number. तो आप क्या करोगे, इसको जितने इसमें डिजिट्स हैं उतने टाइम्स 9 लिखोगे और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इसी नंबर को. So what you will get in the end, that will be your 9th complement of the decimal number. ठीक है, जितने डिजिट्स का नंबर है उतने टाइम्स हम 9 लिखेंगे और नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट विल बी आवर 9th complement. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड. सेम चीज हम अगर बेस वैल्यू 2 में करें तो क्या होगा, बाइनरी में करेंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारी 2 है और हाँ भाई हमें निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट. सॉरी r - 1 मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट. तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने का इसका भी वही मेथड है, 2 raised to the power n - 1 माइनस n. वहां पे हमारा जनरलाइज फॉर्म क्या था, r to the power n - 1 माइनस कैपिटल. ठीक है, सर वो अब हम यहाँ सिर्फ सर प्रीवियस वाला सिर्फ उस केस के लिए था ना जब बेस 10 हो. हाँ नहीं, वो जो फॉर्मूला था जो r to the power n वो कॉमन फॉर्मूला है. फिर जो हमारे पास n नंबर ऑफ 9 है वो बेस 10 के लिए था. हाँ जी सर, जो एग्जांपल्स थी वो तो सिर्फ 10 के लिए थी ना, बेस 10. वो 10 के लिए, बेस 10 के लिए था. ओके. ठीक है, अब हम जैसे हमने उसमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी ऐसा ही इसमें करते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर n को बाइनरी में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर 2 रेज़ टू द पावर आपकी सपोज करो 1 है, n की वैल्यू यहाँ पे 1, एक मिनिमम एक डिजिट तो होगी ही होगी. तो अगर 2 की पावर 1 है तो उसको बाइनरी में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 0, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट. n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो दैट विल बिकम 4. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं बाइनरी में, 1 डबल. n की वैल्यू 3 रखोगे दैट विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर 3 8. और 8 को हम लिख सकते हैं 1 ट्रिपल 0. So just like in decimal number system, 10 raised to the power n is equal to 1 followed by n zeros. In binary number system, 2 raised to the power n is equal to 1 followed by n number of zero. ठीक है, अब उसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट करना है. तो इनमें से जब एक एक वैल्यू हम कम करते जाएंगे तो वो आपकी इस तरीके से बनेगी. ठीक है, तो in decimal number system 10 raised to the power n minus 1, that was equivalent to n number of 9. In binary number system 2 raised to the power n minus 1 will be equal to n number of 1. तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी तो एक ही एक आएगा. n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 1, 3 रखोगे तो 3 1. ठीक है, 4 रखोगे तो 4 1. And now you have to subtract that original number from this particular value. ठीक है, अब इसमें से घटाना है. एंड नाउ वी आर डीलिंग विद बाइनरी नंबर्स ओनली. सो व्हाट विल हैपन, या तो 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा.
तो अगर आपके इनिशियल नंबर में जहां पर भी 0 है वहां पे 1 आ जाएगा, और जहां पर भी 1 है वहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दो ही तरह के सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, या तो एक में से 0 घटेगा या एक में से 1 घटेगा। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो उसमें हमारे सारे के सारे 1 1 1 1 है, नीचे हमारा गिवन नंबर होगा, तो उसमें फिर क्या होगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट में, the ones complement of a binary number is formed by changing ones to zeros and zeros to सिंपली आपने जो भी गिवन नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 की जगह 1 कर दो और 1 की जगह 0 कर दो। जैसे इसका अगर निकालना है तो 0 का 1 1 1 0 0 1 0, that will be the first complement, ones complement of this number. सर ये स्लाइड का थोड़ा एक बार फिर से समझा दो, कंफ्यूज हो गया। यस सर, एक बार रिपीट कर। ठीक है, देखो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो तो ये रहेगा कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये हमें इसलिए याद रखना है कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर सिस्टम दे दिया जाए जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, जस्ट टू चेक वेदर यू नो द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट और नो। ठीक है, बेस नंबर 5 दे दिया, बेस नंबर 3 दे दिया, बेस नंबर 8 9 दे दिया, तो उस केस में तो हमें कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, बट फॉर स्टैंडर्ड बाइनरी स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि इस ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी बनती क्या है। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर जो n है बाइनरी नंबर सिस्टम में वो ये बनता है। इनकी वैल्यू अगर 1 है तो 1 के बाद 1 0 आती है, n की वैल्यू अगर 2 है तो 1 के बाद 2 0 आती है, n की वैल्यू 3 है तो 1 के बाद 3 0 आती है। तो उसमें से एक एक सब्ट्रैक्ट करना था, उससे क्या होता है ये वाली वैल्यूज मिल जाती हैं। सो इफ n की वैल्यू 1 है, दिस होल थिंग बिकम्स 1, n की वैल्यू 2 है, दिस होल थिंग्स बिकम 1 1, n की वैल्यू n रखोगे तो देयर विल बी n नंबर ऑफ 1। अब उसमें से हमें अपना ये, अब देखो ना, जैसे इसमें 1 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा बाइनरी में 1 0, 1 1 में 1 ऐड करोगे तो आपका आएगा 1 0 0, ट्रिपल 1 में 1 में 1 ऐड करोगे तो आएगा 1 0 0। कि ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट किसका है 8 का, और ये किसका है 7 का, ये किसका है बाइनरी इक्विवेलेंट है 4 का, ये किसका है 3 का, दिस इज 2, दिस इज 1। ऐसे ही अगर यहाँ पे 16 करोगे तो उसमें आपके 4 जीरोज आ जाएंगे, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 15 होता है, उसमें आपका फिर 4 ये आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 15, और हेक्साडेसिमल में जिसको हम FD बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी नंबर में जिसमें सारे के सारे आपके वंस हैं, ठीक है, और इसमें से अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा नंबर, तो सब्ट्रैक्शन में तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एक में से 0 घटेगा या एक में से 1 घटेगा। तो फिर उसमें आपका क्या होता है कि सारे की सारी जो वैल्यूज हैं गिवन नंबर की वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर अगेन 0, फिर 0, फिर 1 0 1 0। so this was the given number and this is the complement। और अब हम इन दोनों में रिलेशनशिप देखते हैं तो वो क्या आता है कि 0 की जगह हमने 1 लिख दिया है, 1 की जगह हमने 0 लिख दिया। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज होल प्रोसेस टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। और कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि अगर आपको 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू जस्ट सिंपली चेंज 0 to 1 and 1 to 0 फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हमारा नंबर सिस्टम इतना इजी हो गया है कि अब हमें इस पूरे मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि हम आप पहले 2 की पावर n निकालो या 1 निकालो, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। सिंपली रिमेंबर कि आपको
वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी में, तो चेंज 0 to 1, 1 to 0। हाँ, मेथड आपका यही रहेगा, वो इसलिए बताया गया है ताकि आपको किसी भी नंबर सिस्टम में कैलकुलेट करना हो तो आप कर पाओ। ठीक है, so now you can compute the ones complement of any number। कर सकते हो ना? Should I move on? हाँ भाई बताओ, कर लोगे ना? Yes, sir. ठीक है। Now comes the second type of complement। अभी जो हमने डिस्कस किए वो थे r minus वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर बाइनरी साइन सिस्टम में निकाल रहे हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया, और अगर डेसिमल नंबर सिस्टम था तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया। अब हमने निकालना है आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका ये, तो इस फॉर्मूले में और प्रीवियस वाले फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है, इसमें से -1 मिसिंग है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला था हमारा आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट का, वो ये था r⁻n - 1 माइनस कैपिटल N। यहाँ पे है सिंपली r⁻n माइनस कैपिटल। तो अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का निकाल लिया है और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सिंपली ऐड प्लस। अगर आपके पास नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है किसी नंबर का और टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जस्ट ऐड प्लस। तो वंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर दो, टूज कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये तो है आपका जब आपको पहले अब प्रीवियस वाला कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करते थे? जैसे ये हमारा गिवन नंबर है 01239 8। जब हम इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो क्या करते थे? हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो 9 में से 8 जाता 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9। दैट वुड हैव बीन द नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। इसमें एक ऐड करेंगे तो हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट बन जाए। ठीक है, ये तो है कि हम प्रोसेस के थ्रू कैसे जाएं। शॉर्टकट आपका क्या है? पहली डिजिट को तो आप 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दो और बाकी की सारी डिजिट्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सिर्फ फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को 9 में से 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद वाली को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस पर्टिकुलर नंबर का जिसमें हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 0 आ जाए। तो क्या करेंगे? क्योंकि जब 0 आ गया है तो 10 में से 0 को घटाएंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। Sir, I got disconnected for a second, for a minute. Can you explain from third point? Okay. So what we are trying to do here is to calculate the tens complement of the number in decimal number system. तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो मेथड है वो क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप 10 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। यहाँ पे 8 था तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया 2। बाकी की रिमेनिंग डिजिट्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दो यहाँ। ठीक है, दैट इज फॉर द नंबर जिसमें आपके स्टार्टिंग में जीरोज नहीं है। बट लेट्स से दिस नंबर इज हियर 246,700। अब 0 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर वो अब एक डिजिट की जगह 2 डिजिट तो हम लिख नहीं सकते। तो उसके लिए फिर क्या मेथड है? यू कीप ऑन कॉपिंग द जीरोज एज इट इज फ्रॉम द LSB एज इट कम। जैसे जैसे 0 आते जाएंगे आप 0 को 0 ही लिखिए, 0 को 0 ही लिखिए। The first non-zero number from LSB side will be subtracted from 10 and the remaining all the digits will be subtracted from 9.
ठीक है, जब तक जीरो आ रही थी आपने कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, उनको एज इट इज लिख देना है. यू वेट फॉर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर टू कम फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम द LSB साइड, और उसको आप 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे 7 था तो 10 - 7 C. ऑल द रिमेनिंग डिजिट्स, उसके बाद चाहे जीरो बची हो, चाहे वंस हो, चाहे कुछ भी हो, उसको फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में. सर हमें तब तक स्किप करी जाए जब तक एक नॉन जीरो नंबर ना आ जाए, जैसे यस पहले. यस, जब तक करते जाएंगे जब तक फर्स्ट नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता. ठीक है, सो लेट्स से कि हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 एंड देन 0 0 0 0 0. इसका हमने 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ठीक है, तो पहले आप जीरो को एज इट इज लिखेंगे. 0 0 0. कितनी जीरो है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये जीरो आपकी एज इट इज आएंगी. उसके बाद फर्स्ट नॉन जीरो को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7. रिमेनिंग डिजिट्स को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 and 8. So this is the 10th complement of the number. ठीक है. Now let's calculate the r's complement in binary number system. ठीक है, तो बाइनरी में भी जो लंबा मेथड अगर आपको अपनाना है तो उसमें क्या कर सकते हो, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना. ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना उसमें इजी है. 0 को 1 लिखना है, 1 को 0, और उसके बाद उसमें 1 ऐड करना. दैट इज दी ओरिजिनल जो मेथड है जो हमें करना चाहिए. ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है इसका, जैसे कि 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने का डेसिमल में था, वैसे इसमें भी है. उसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या है? जस्ट लाइक द प्रीवियस डिस्कशन, कॉपी द नंबर एज इट इज जब तक कि आपका पहला नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता. ये जीरो आपका यहाँ एज इट इज जाएगा, ये वाला जीरो आपका एज इट इज यहाँ जाएगा. ठीक है, कॉपी अप टू फर्स्ट 1. पहला 1 नहीं आ जाता ना, तब तक कॉपी करते रहो. ठीक है, एंड आफ्टर दैट चेंज 0 to 1, 1 to 0. उसके बाद अगर 1 है तो उसको लिखेंगे 0, 0 को लिखेंगे 1. ठीक है, अब इसमें जैसे करने के लिए हम इसमें अगर करना चाहें तो पहला 1 हम नोट डाउन करेंगे नंबर को फ्रॉम राइट हैंड साइड अप टू फर्स्ट 1. जैसे ही पहला 1 मिलता है उसको तो एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी नंबर है सबको रिवर्स कर देंगे. 0 को 1, 1 को 0. ठीक है, लेट्स से वी हैव 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 अगेन 0. अगर इसी का कैलकुलेट करना है तो आप इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे. 0 अगेन 1. I will copy the number up to first 1. So 0 0 1. उसके बाद रिवर्स करते जाएंगे. तो 4 जीरोस हैं, 4 1, फिर 3 1s हैं, 3 zeros. देन 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0. कोई एक डिजिट मिसिंग होगी? नहीं, ठीक है. So 4 times 1. नहीं ठीक है, वो इसमें नंबर ऑफ वंस ज्यादा आ रहे हैं ना, तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा स्पेसिंग का हो गया है. बाकी ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक 1 कम है. हाँ, ठीक है. सो कॉपी अप टू फर्स्ट 1. तो 0 0 0 0 1 का 1. आफ्टर दैट चेंज zeros to 1 and ones to 0. That's how you will get the 2's complement of a number.
ठीक है, किसी को डाउट लग रहा है, कुछ पूछो। तो ये वाला फिर से समझा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लेट्स से कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन नंबर है, इसको हमने निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा, इस साइड से। ठीक है, पहले 0 है तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये एज इट इज लिखने का कब तक चलेगा, जब तक पहली बार 1 नहीं आ जाता। यहाँ पे 1 है फर्स्ट टाइम, ये भी एज इट इज लिखा जाएगा 1। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं सबको मैं रिवर्स करूंगा। यहाँ पे 1 है तो मैं लिखूंगा 0, यहाँ पे 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0। So I will copy the numbers from right hand side up to a point I get first one. तो जब तक पहला 1 नहीं आता तब तक मैं एज इट इज लिखता रहूंगा, और उसके बाद के नंबर्स को मैं रिवर्स कर दूंगा, 0 को 1 और 1 को 0। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि ये तो दोनों चीजें सेम ही आ गई। जैसे पहले मैंने ये नंबर लिखा, इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसमें वी हैव टू कॉपी अप टू फर्स्ट वन। तो जब तक हम ऐसा करते हैं हमारा पूरा नंबर ही खत्म हो जाता है। सो द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन वो आप उसको आप वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेथड है वो आपका यही रहेगा, उसको देख के घबराना नहीं है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, you wait until the first time you get a 1, after that you change the 1s to 0, 0s to 1। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज सीख लिया। टू कैलकुलेट 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन और करवा देता हूँ। 9s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 9 में से अब नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वो जो भी है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10s कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी को 9 से। 9 में से, इस तरीके से। ठीक है, मैं 4 डिजिट के ही नंबर ले रहा हूँ हर केस में। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द 10s कॉम्प्लीमेंट। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से है कि दोनों कैलकुलेट करने हैं, आपने 9s कॉम्प्लीमेंट पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो यू कैन सिंपली एड 1 टू दिस वैल्यू टू गेट दिस वैल्यू। मेथड कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा है इसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम में 1s कॉम्प्लीमेंट अगर करना है, सिंपली चेंज 1 to 0 एंड 0 to 1 फॉर ऑल दी वैल्यू। ठीक है, और अगर हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो यू कॉपी अप टू फर्स्ट वन एंड देन चेंज 0 to 1, 1 to 0। ठीक है, so now we will discuss how to use these complements to subtract the number, to perform the operation of subtraction. One of the applications of these complements, how do we subtract a number with complements। ठीक है, तो हम पहले मेथोडोलॉजी समझ लेते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे।
ये आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा वो हैं. वंस यू डू each example for each of these things, then you will have a better understanding. फिर आप भूलोगे नहीं. ठीक है, तो हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है m में से n को. वी हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. m माइनस n, दोनों के दोनों हमारे n डिजिट्स के हैं. अनसाइंड नंबर है. अनसाइंड मीन्स दीज आर पॉजिटिव नंबर. इनमें कोई हमने प्लस माइनस का डिफाइन नहीं किया हुआ है. दीज आर जस्ट अनसाइंड नंबर. तो हम अज्यूम करेंगे पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो आप हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि वी हैव टू ऐड m टू द r कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राहेंड n. इस वैल्यू को हमने घटाना था, तो इसका हम पहले r कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो 10's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे हमने वही किया हुआ है. r कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता था वो होता था r टू द पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N. ठीक है, तो यहाँ पे वही किया हुआ है. वी हैव एडेड दिस पर्टिकुलर वैल्यू that is r's complement of the subtra n to the min end n. ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने एडिशन करते हैं, अब इसको इक्वेशन को सोल्व करो. व्हाट वी गेट m माइनस n प्लस r. ठीक है, अब हमने ये चेक करना है, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो हमें ये कंडीशन देखनी है. इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो हमारे जो भी सम आएगा, यहाँ पे r की पावर n दिया है, that will produce an array after the most significant bit. हम उसको डिस्कार्ड करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट. आप यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में जब हमने इसको एडिशन किया तो हमारे पास आया m माइनस n प्लस r की पावर n. तो अगर हमारे पास 3 डिजिट्स का नंबर था तो हमने 1000 ऐड किया है. 4 डिजिट का नंबर था तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद 10,000 ऐड होके आ रहा है. तो 10,000 ऐड कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर के अंदर. तो बेसिकली वी आर गेटिंग 1 कैरी आफ्टर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे अगर हमारा m ग्रेटर देन इक्वल टू n है. और अगर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो आपका हमारे यहाँ पे क्या बचता है, m माइनस. अगर m लेस देन n है तो आपका आखिर में कोई कैरी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा दैट रिजल्ट इज ऑल्सो इन दी r कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. ठीक है, थ्योरी में आपका थोड़ा लगता है कि कंफ्यूजिंग है ज्यादा. इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ. लेट्स से वी हैव टू सब ऑपरेट इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. हमें इसको सोल्व करना यूजिंग 10's कॉम्प्लीमेंट मेथड. ठीक है, तो पहले नंबर को हमने एज इट इज लिख लिया, m को एज इट इज. अब हम इसका 10's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, लेकिन इसमें 4 डिजिट हैं और ऊपर वाले में 5 डिजिट. तो ऐसे ठीक नहीं करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एक एक्स्ट्रा डिजिट और लगाएंगे, 0. नाउ वी विल कैलकुलेट इट्स 10's कॉम्प्लीमेंट. तो 10's कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, 0 को तो 0 लिखेंगे पहली, उसके बाद जो भी फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आएगा उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 10 माइनस 5 5. उसके बाद 9 माइनस 2 7. 9 माइनस 3 6. 9 माइनस 0 9. दिस इज 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबट्राहेंड. जिसको घटाना है उसका 10's कॉम्प्लीमेंट है. अब इन दोनों को ऐड करो. 2 8 2 1 carry 9 9 plus 7 16. So you see here that there is a carry. अब इसका हमने क्या करना है वो डिपेंड करता है. आप इन दोनों को रिलेशन देखोगे यहीं पे ही. From there we can see that m is greater than n, so we will discard this carry. इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, discarded, and then directly write down the result. या फिर आप 10 की पावर 5 को इसमें से घटा के फिर लिख सकते हो. एक ही बात.
ठीक है, डेसिमल में हम डायरेक्टली भी घटा सकते हैं, लेकिन हम मेथड बता रहे हैं ताकि हमें बाइनरी में समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, आप डायरेक्टली भी घटा सकते हो बोरो करके, बोरो वाले मेथड से, पर हमें वो नहीं करना है। यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ में आया, तो मैं आगे चलूं। कैलकुलेट द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, एड सर इट टू द। एक और एग्जांपल बता दो। एक और एग्जांपल से, अच्छा एक काम करके देखते हैं, इसका ऑपोजिट करते हैं। अभी हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया है, अब हम छोटे में से बड़ा नंबर घटा के देखते हैं। सेम नंबर हमारे सेम रहेंगे। अभी हमारा आंसर आया है 69282, उसके बाद हमारा आंसर आना चाहिए -69282। ठीक है, तो अब हमारा m और n की वैल्यूज चेंज हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे पहले 0 ऐड कर दिया m के लिए, 03250। ये हमारा n था, हम इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। तो इसमें पहली डिजिट को 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 2 8, 6 4 7 2। तो 8 6 4 7 2 ये आ गया उसका 10th कॉम्प्लीमेंट। फिर हम इनका एडिशन करेंगे, दोनों का एडिशन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई कैरी मिलती ही नहीं है हमको। जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो उस टाइम पे कैरी नहीं मिलेगी। इफ m इज लेस देन n, इन दैट केस तो कैरी नहीं मिलेगी, देन दैट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ टेंस कॉम्प्लीमेंट इटसेल्फ। अगर यहाँ पर कैरी आ जाती किसी भी तरीके से, तो हम उसको बोलते कि कैरी इसलिए हुई है बिकॉज m इज ग्रेटर देन n, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, रिमेनिंग इज योर आंसर। अगर कैरी नहीं आई है, देन योर आंसर इज नेगेटिव एंड इट इज इन टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो आपको इसका फिर से टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और माइनस का साइन इंसर्ट करना पड़ेगा, गिविंग द एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर टेकिंग दिस नंबर एज नेगेटिव, बिकॉज देयर इज नो कैरी। तो इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 8, 9 में से 7 2, 9, 9 में से 3 गए 6, 69282 with negative sign. This you have to do if your m is less than n. अगर m greater than 1 है तो उस केस में आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा कैरी को। ग्रेटर देन है देन n, then there will be carry discard the carry, remaining is final result। ठीक है, what if m is less than n, then no carry will be there and the answer will be negative, and the last observation is that the result is in tens complement form। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें बताओ। No, sir. चलो तो फिर नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट, कि हम बाइनरी में कैसे करेंगे। सेम मेथडोलॉजी है,
यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, एक बार x माइनस वाई निकालना है, एक बार y माइनस एक्स यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हमने x को एज इट इज लिख लिया, y ये था, y का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? कॉपी अप टू फर्स्ट वन, पहली बार में आ गया, एंड देन चेंज, एंड 0। तो वहां पे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 0 + 1 1, 0 0 0, 1 + 1 0 with carry 1, again 1 + 1 0 with carry 1, now again 1 + 1 + 1, sum will be 1, there will be 1 carry, 1 + 1 0, 1 carry, 1 + 1 0, 1 carry, जो कि यहाँ पे एडजस्ट आ गई यहाँ पे। ठीक, now there is a carry, then you have to discard this carry। डिस्कार्ड करने का ये तरीका भी लिख सकते हो कि 2⁻7 सब्ट्रैक्ट करो, या फिर सिंपली यहाँ पे इसको सर्कल करके आप कह सकते हो डिस्कार्ड द कैरी, एंड दिस मीन्स दैट द नंबर x is greater than y and the result will be positive and this is the final answer। रिमेनिंग डिजिट जो भी हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिवर्स करके देखते हैं, y माइनस एक्स, y को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, x को, x का टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 0 1 एंड देन चेंज, 1 0 1 0, इसको हमने यहाँ लिख दिया, 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 1 + 0 1 1 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। So there is no carry in this particular operation। यहाँ पे कोई कैरी नहीं आई, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे that there is no end carry, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, there is no end carry, therefore the answer is y minus x equal to this one। आप ऐसे भी लिख दो या ऐसे लिख दो सिंपल कि the answer is in 2's complement form। इसका फिर से 2's complement निकालो आप, कॉपी अप टू फर्स्ट वन, तो हमारा सिंपल 1, उसके बाद 3 1s है, उसको हमने 0 करेंगे, उसके बाद 0 है तो उसको हम 1 करेंगे, फिर 1 है तो 0, फिर से 1 है तो 0। दिस विल बी द फाइनल आंसर एंड इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा y माइनस एक्स से आया है और ये हमारा x माइनस वाई से आया था, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, नेगेटिव साइन। If there is a carry, you will give an explanation for that, that this means we have to discard the carry because x is greater than y and the answer will be positive। If there is no carry, you will write there is no end carry, that means the answer is negative and it is in 2's complement form। So you have to again take the 2's complement of the answer। ठीक है, किसी को डाउट इसमें बताओ? No, sir। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, अपनी मनपसंद जितने भी नंबर आप ले लो, डेसिमल नंबर ले लो या बाइनरी ले लो, और उनका सब्ट्रैक्शन करना है यूजिंग 2's complement मेथड। ठीक है, वेरिफिकेशन साथ साथ होता जाएगा, x + y कर लो, x माइनस, और एक बार x माइनस वाई कर लो, एक बार y माइनस एक्स कर लो। ठीक है, वन मोर थिंग दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ इज टू चेक व्हाट इज द 2's complement ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का 2's complement निकाल लिया, उसका फिर से 2's complement निकालो, क्या? तो वो नंबर itself। हाँ, इसी तरीके से किसी नंबर का 10's complement निकाल लिया है, उसका फिर से 10's complement निकालो, फिर देखो क्या।
ठीक है, वो नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। ये कुछ प्रैक्टिस है जो आपको खुद करनी है, एक्सरसाइजेस। तो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और अब जो भी हमने ये सीखा है आज, तो सब्ट्रैक्ट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट थिंग, ये आपका बाकी के ऑपरेशन में बार बार यूज होता रहेगा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें।